Scholar High School, Scholar High School, है मेरा ये स्कूल, सबका प्यारा ये स्कूल, Scholar High School. In the glorious name of Almighty Allah, most beneficent and the most merciful, I, Kharojia Hanzala, from class 10th C, And I, Noori Affan, from class 9th D, host of today's program, stand before you with immense pride and happiness. On this auspicious morning, it is our honor to extend a warm welcome to our respected dignitaries, distinguished guests, beloved teachers, supportive parents, and my dear friends. With great joy, we invite you all to join us in celebrating the 33rd annual day of the Scholars High School and Junior College. Al-Qalam, Al-Qalam, ए शुआए क़लम, तुझसे रोशन हुआ इल्म का एक हरम, वो हरम स्कॉलर स्कूल है. Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam made it obligatory for all men and women equally to acquire knowledge. Education is the tool which empowers us to change society and the world. With this in view, we started with this journey in the year 1992 with the name of Al-Qalam Educational Trust. We have been nurturing our society from the past 33 years in the form of education, excelling our students in our deen. We are not only imparting education, but has contributed to the society with professionals who are good citizens of the country and contributing to the society with excellence. We went through ups and downs, but have achieved many success stories. Even today, with educational institutes are highly commercialized. When we look back, it is difficult to believe that we have walked this long distance of accomplishments. This dream could have not come true without the help of Almighty and with the encouragement of trustees. The founder members and trustees of Al-Qalam Educational Trust include Mr. Aslam Ghazi, the chairman, Mr. Mahfouz Ahmad Siddiqui, the general secretary, and Mr. Muhammad Abdul Rashid as trustee, along with Mr. Abdul Ghafoor Khan, Mr. Hassan Badar Nawab, Mr. Mahmood Padiyar, Mr. Abdul Wahid Abdul Sattar, Mr. Muhammad Amin Gulzar Tanwar, and Mr. Sayyid Tehseen Ahmad, who collectively contribute to the trust mission with dedication and integrity. We are very pleased to Asif Malkani sir, UID head of Mumbai. The academic leadership of the Scholars High School is headed by Mrs. Azra Khan, Principal of the Scholars High School and Junior College, Mrs. Zahida Chunawala, Headmistress of the Scholars High School, Primary Section, Mrs. Naila Mahfouz Siddiqui, in charge of the Scholars High School, Secondary Section, Ms. Saleha Mahfouz Siddiqui, Coordinator of the Scholars Pre-Primary School, Sir Jamal Akhtar, in charge of the Scholars High School, Deeniyat Department, all working collectively to ensure academic excellence. We extend a heartfelt gratitude to all our respected parents who are the world of their children. With immense administration and affection, we welcome all our parents who have made the efforts to join this auspicious program. Thank you for joining us. It is my proud privilege to extend a hearty welcome to the glory of our institution, the brilliant student of the Scholars High School and Junior College, along with our respected teachers and dedicated staffs, who are the true pillar of our school. आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूल थे, कांटों से भी आई खुशबू. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Every successful program needs more than just performances. It needs voices that connect, guide, and bring the entire event together. And today, we are proud to say that those voices come from the very heart of our school. I, Khan Zoha from 10th B.
And I, Khan Hiba Majid from 9th A. Together, we have the honor of being your host for today's annual day program of the Scholars High School and Junior College. Let us take you through a journey of talent, learning, values, and celebration. Please enjoy the program. So, let's start today's program with peace and blessings. We ask everyone to sit calmly and listen with devotion. We will now move towards a segment that reminds us of the guidance given to us through the Holy Quran. The Quran is not only meant to be recited but also to be understood and reflected upon in our daily lives. The surah which the secondary section students are now presenting is Surah Ash-Shams. Allah swears by different creations in this surah to remind us that success comes to those who purify their souls. We will begin this segment with the tilawat of Surah Ash-Shams. We request everyone to listen calmly with respect and attention. We now invite our students for the tilawat of Surah Ash-Shams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Rahim Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم. MashaAllah, the words of the Quran are powerful and full of wisdom that truly blessed our ears. To help us understand the meaning of the surah, we will now listen to its translation presented by Hiba Majid from 9th A. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अल्लाह की पनाह चाहती हूँ शैतान मरदूद से। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान हमेशा रहम करने वाला है। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, चाँद की जब वो सूरज के पीछे आए, दिन की जब वो सूरज को खूब रोशन कर दे, और रात की जब वो सूरज को छुपा ले, आसमान की और जैसा कुछ उसे बनाया, ज़मीन की और जैसा कुछ उसे बिछाया, और इंसानी जान की जैसा कि ठीक और दुरुस्त उसे बनाया, फिर उसे उसकी बदकिरदारी और परहेज़गारी समझा दी। यकीनन जिसने नफ्स को संवार लिया वो कामयाब हो गया,
मगर जिसने उसे अपनी बुरी ख्वाहिशात में कैद रखा वो घाटे में रहा। समूद ने तो अपनी सरकशी की वजह से पैगंबर को झुठला दिया, जबकि उनमें का सबसे बदबख्त इंसान उठ खड़ा हुआ। तो अल्लाह के पैगंबर ने उन लोगों से कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पानी के बारे में ख़बरदार, यानी ना ऊँटनी को किसी तरह का नुकसान पहुँचे और ना ही उसके पानी पीने की बारी में कोई नाइंसाफ़ी हो। मगर उन लोगों ने पैगंबर की बात को झूठा करार दिया और ऊँटनी को मार डाला। आखिरकार उनके इस गुनाह की सज़ा में उनके रब ने उन पर ऐसी आफत तोड़ी कि एक साथ सबको बर्बाद कर दिया और उसे इस काम के किसी भी नतीजे का कोई अंदेशा नहीं होता। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरा। That was a beautiful explanation. To further reflect on the message of this surah, we now have a short yet meaningful speech. This speech will help us understand how the teachings of Surah Ash-Shams actually guide us in our daily lives. We now invite Abdul Rahman from 8C to present a speech on Surah Ash-Shams. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम हाज़िरीन, जब कुरान मजीद सूरह शम्स में कायनात की अजीम तरीन निशानियों की कस्में उठाता है, सूरज की, उसकी रोशनी की, चाँद की, दिन की, रात की, आसमान और ज़मीन की, तो ये महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये इंसान की तवज्जो को उसके अंदर की दुनिया की तरफ मोड़ लेने का ऐलान होता है। अल्लाह ताला हमें समझाना चाहते हैं, जिस रब ने सूरज को रोशनी दी, चाँद को चमक अता की, रात को पर्दा बनाया और दिन को ज़िंदगी की दौड़ का मैदान, उसी रब ने इंसान के दिल में भी रोशनी और तारीकी दोनों रख दी है। फिर इरशाद होता है, और नफ्स की कसम और उस ज़ात की जिसने उसे दुरुस्त बनाया, फिर उसमें नेकी और बदी का शऊर डाल दिया। दोस्तों, कुरान हमें यह हकीकत समझाता है, इंसान मजबूर नहीं, बेख्तियार नहीं, बल्कि उसे पहचान दी गई है, नेकी को पहचानने की और बदी को समझने की। फिर वो फैसला कुन ऐलान आता है जो इंसान की कामयाबी और नाकामी का मियार तय कर देता है। यकीनन कामयाब होगा वो जिसने अपने नफ्स को पाक कर दिया, और नाकाम होगा वो जिसने उसे आलूदा कर दिया। ये सूरह हमें समझाती है, कामयाबी दौलत में नहीं, ओहदे में नहीं, शोहरत में नहीं, बल्कि दिल की पाकिज़गी में है। और नाकामी का सबब भी वाज़ेह है, जब इंसान अपने ज़मीर की आवाज़ को दबा दे, ख्वाहिशात को खुदा बना ले और नफ्स को गुनाहों की गर्द में छुपा दे। आखिर में कौम समूद की मिसाल देकर कुरान हमें खबरदार करता है, जब एक कौम ने हक़ को झुटलाया, नसीहत को ठुकराया और तकब्बुर के साथ नफ्स की पैरवी की, तो फिर अल्लाह की पकड़ ऐसी आई, नमाजी बचाना मुस्तकबिल। दोस्तों, सूरह शम्स हमें यह पैगाम देती है, असल मारिका बाहर नहीं अंदर है, असल जंग तलवारों की नहीं बल्कि ख्वाहिशात के ख़िलाफ़ है। आज अगर हम कामयाबी चाहते हैं तो हमें सूरज की तरह सच्चाई को रोशन करना होगा और चाँद की तरह पाकिज़गी को चमकाना होगा और दिल को तकवा से सैराब करना होगा। आखिर में एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। बात अगर किरदार की होती है वगरना आरिफ, बात अगर किरदार की होती है वगरना आरिफ, कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। MashaAllah, that was a very thoughtful and inspiring explanation. We truly appreciate the efforts of all the students who took part in this meaningful segment. The Quran is the source of guidance, peace, and wisdom. In the Quran, Allah says, "Indeed, Allah and His angels send blessing to the Prophet. Oh, those who believe, do pray Allah to bless him and send your salam to him in abundance." Our students from secondary section are going to recite a beautiful naat on Hasrat-e Didar-e Nabi. I welcome boys from secondary section to come on stage. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा नहीं है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज़ तक सुन सका मैं, न ग़ज़वात में मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ादरा भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर से दर से मोहब्बत, सफ़र से मोहब्बत, हज़र से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते रहे गुज़र से मोहब्बत, वो ईमान शक्कुल कमर से मोहब्बत, ज़कन से दहन से नज़र से मोहब्बत, नबूवत की जिसने गवाही दिया का, हाँ उस गोह से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबू बकर सामे रफ़ीक़े सफ़र हूँ, न उस्मान व हैदर हूँ, ना मैं उमर हूँ, न तल्हा न हमज़ा सईद व साद हूँ, अनस जैसा खादिम न खालिद असद हूँ, न मैं इब्न औफ व ज़ुबैर व उबैदा, न मैं बूद जाना मुआद व क़तादा, न अरकम न अखनस बिलाल और यहया, न मिसले यसार और यासिर न याला। मैं इन सब के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाहु खैरन। MashaAllah, what a beautiful performance. That was not just a recitation, it was a profound spiritual experience. Your heartfelt performance has truly touched all our hearts and reminded us of our deep love for our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. May Allah bless each one of you and may He grant us all the ability to live by the Sunnah, to love, honor and respect our beloved Prophet Muhammad. Ameen. We are so glad you're here for us today. We are glad you came. This is the day that will last in our memories, for reason to smile.
humble wishes from a tender heart. Casting the future, crafting a new world, making a human and burning a flame. Masters of wisdom, angels of young minds, shaping crystals out of all. We are so glad to welcome you. We wish to give us our full heart. Celebrate what we bring us together. We are the one voice. We are to welcome you. We are the blooming buds to seek your blessings. Love of learning instant from your grace. You are the mentors of the broken mind, 'cause you love to see us smile. Because great things start with small beginnings. This humble wishes from our tender hearts. Casting the future, crafting a new world, making a human and burning a flame. Masters of wisdom, angels of young minds, shaping crystals out of gold. We are so glad to welcome you. We wish to give us our full heart. Celebrate what we bring us together. We are the one voice. We are to welcome. We are so glad to welcome you. We wish to give us our full heart. Celebrate what we bring us together. We are the one voice. We are to welcome you. MashaAllah. That was so adorable, right, Hiba? I know. Wasn't that cute, everyone? I think this performance truly set the mood for the morning. Exactly. It was special way to bring smiles on everyone's face. Have you ever thought that small things can make a huge difference? Just a small drop of water can make the mighty ocean. Today, as the primary section girls present small act and big change, we are going to see how even the smallest of things that we may ignore can cause what? Please welcome the primary section girls as they present the skit Small Act, Big Change. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. To one and all present over here, we the student of grade 3rd and 4th are going to present a skit based on morality. Through this small skit, we would like to show how small acts done with sincere intention can bring a big change. Scene 1. Alina is having breakfast and mother is advising her to recite dua before eating. Alina, say Bismillah before eating. Ammi, I pray 5 times. Small things don't matter. Allah will forgive small things. My daughter, Islam is not only namaz, Islam is akhlaq. After having breakfast, Alina goes to wash her hands. Appi, close the tap after washing hands. Water is Allah's blessing. Please, one tap open won't make Allah angry. Sister, you are being too arrogant. Everyone keeps advising me. I hate this. Scene 2. This is a scene of a classroom during recess time. Alina is throwing the wrappers on the floor. Alina, why are you throwing the wrappers on the floor? So what? Someone will clean it. Please use the dustbin. Cleanliness is a part
Alina starts eating her food without washing her hands. At least wash your hands before eating. I don't have time to wash my hands. Dirt doesn't kill anyone. Alina, the Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam taught us cleanliness is half of faith. You please don't teach me what to do. Have your own lunch. Cleaner comes and clean the classroom. Alina ignores her classmates' advice. Now everyone is irritated with her arrogant behavior. Scene 3. Alina is sleeping in a deep sleep and heard strange and frightening voice in her dream. Alina, what if you die today? Alina trembles. Angel appear glowing. Saturn appears dark. Be proud. I am proud of you. Alina, fear Allah. Your tongue hurts people. Who are you? I record your good deeds to present in front of Almighty Allah. But alas, I don't have good deeds to show. These all are useless talks. Don't pay any attention to it. I am proud of you. You don't need to change your behavior. Go ahead, go ahead. Ha 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 ha. No kindness, no respect, no mercy. What will you present in front of your Lord, Alina? Why are you saying this to me? I pray 5 times a day. What is it that I have done wrong? Only 5 times prayers? Prayers are not accepted if one's morals are bad. Some angels appear to explain different akhlaq to make a person good Muslim and good human being. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. The messenger of Allah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, the best among you is the one with the best morals. As Allah said in Quran, Inna Allah yuhibbul muhsinin. Indeed, Allah loves those who do good. قال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. The messenger of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, cleanliness is half of faith. قال النبي صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. The messenger of Allah, Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam said, even seeing your brother smile is charity. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس. The messenger of Allah, Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, the best of people is the one who benefits people the most. You have not included any of these good deeds for making your class better. Now you have no other choice. You have to go with Satan.
Come with me. I am taking you to my paradise. Listening to the Satan's word, she starts going with him. When she reaches near the gates of the hell, she gets sad, seeing hell's terrifying scene, and she starts crying. She thinks and say, "What I have done?" She starts remembering the advice of the angel. Ya Allah, forgive me. Ya Allah, give me one more chance. Inshallah, I will improve my akhlaq to become a better Muslim. Ya Allah, forgive me. Ya Allah, forgive me. Alina wakes up. Ammi, Ammi. Alina explained her dream to her mother. I am sorry, Ammi. I have realized my mistake. I promise, along with namaz and Quran, I will learn all good habits within myself and make myself a good Muslim. The moment you realize your mistake and sincerely ask for forgiveness from your heart, Allah forgives all your sins. जीना तो है उसी का जिसने राज जाना, जीना तो है उसी का जिसने राज जाना, है काम आदमी का औरों के काम आना। करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्श बरी पर। العلم النور، العلم النور، العلم نور ہے، علم نور ہے، العلم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ اصول دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بڑا اس زمین پر اپنے اوپر ناز کرتا ہے، جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے، جہاں پر باوضو انسان کوئی قرآن پڑھتا ہے۔ برستا نور ایسا ہے کہ تارے جگمگاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ بروز حشر نوری تاج سر پر جگمگائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا، جو اپنے لاڈلے کو حافظ قرآن بنائے گا۔ خدا بخشے گا اس کو یہ نبی مژدہ سناتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں۔ دین کی خاطر جو بچے گھر سے جاتے ہیں، فرشتے پر بچھاتے ہیں، فرشتے پر۔ Wow, who knew a small act could make such a big difference? Let's remember, no act is too small when it comes to Islam. Let's all promise ourselves to follow the righteous paths in Islam. May Allah protect us from hellfire, inshallah. उठो ये मंजर शब्दाब देखने के लिए, उठो ये मंजर शब्दाब देखने के लिए, कि नींद शर्त नहीं ख्वाब देखने के लिए। The stage is more than a mirror today. It's a journey through time. A journey that begins on the quiet shores of Rameshwaram with a boy who dared to dream beyond the sky.
He became a leading figure of ISRO and DRDO, contributing significantly to India's space and missile development, inspiring millions with this vision for a developed India, authoring influential books like Wings of Fire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. जो तुझे जगाए, नींदे तेरी उड़ाए, ख्वाब है सच्चा वही, नींदों में जो आए, जिसे तू भूल जाए, ख्वाब हो सच्चा नहीं। जो तुझे जगाए, ख्वाब, ऊंचाइयों पर चढ़ने के ख्वाब, जिंदगी में कुछ करने के ख्वाब। बचपन से मैंने भी एक ख्वाब देखा था, ऊंचाई तक पहुंचने का। कभी सोचा है कि परिंदे जब उड़ते हैं तो वो किस तरह उड़ते हैं? पंखों से, पंखों की उड़ान। हाँ, पंखों की उड़ान जो शायद अल्लाह ने दी होगी उन्हें। पर पंखों के अंदर जो हड्डियां हैं वो किस तरह जुड़ी है, यही तो सवाल है। कहानी शुरू करते हैं। हिंदुस्तान का एक गांव, हाँ, हिंदुस्तान का एक गांव रामेश्वरम। रामेश्वरम में जन्म हुआ था मेरा। काशी अम्मा मेरी माँ और जैनुल आबिदीन मेरे अप्पा। मेरे अप्पा मस्जिद के इमाम। और हाँ, मस्जिद के थोड़ी दूर पड़ती एक नदी। मेरे अब्बा उधर नाव बनाते थे और नाव बनाकर रामेश्वरम में आने वाले यात्रियों को एक किनारे से दूसरे किनारे पर ले जाया करते। मैं अक्सर नदी के किनारे बैठकर देखता आसमान और समुंदर के बीच उड़ने वाले पंछी। मैं भी पंछी बनना चाहता हूँ, मैं भी उड़ना चाहता हूँ, आसमानों की ऊंचाइयों तक पहुँचना चाहता हूँ। पर मैं गरीब था। अन्ना मास्टर बोले अच्छे नंबर आना। अन्ना गांव में रात को जल्दी अंधेरा होता, ना एक लैंप ला दो। मैं रात को 11 बजे तक पढ़ना चाहता। अप्पा के पास इतने पैसे नहीं थे, उसके बावजूद वो मेरे लिए लैंप लाए। मैं रोज़ रात को 11 बजे तक उस लैंप की छोटी सी रोशनी में पढ़ाई करता और फिर ऐसे नंबर लाया कि अपने गांव की छोटी सी शाला से स्कॉट स्कूल है ना, उसमें एडमिशन लेना था। स्कॉट स्कूल बहुत बड़ी स्कूल है, उसमें एडमिशन लेने के लिए 1000 रुपये लगते हैं। एक इमाम और एक बोट वाला 1000 रुपये कहाँ से देता? तब मेरी आपा वो सारे जेवर ले आई जो मेरी अम्मा ने उसके लिए बनाए थे और कहा ले ये रख ले और दे स्कूल की फीस। पढ़ाई आएगी तो पैसा आएगा, नॉलेज आएगी, गांव में उन्नति होगी। रामेश्वरम छोटा गांव है पर उसका नाम तू ही रोशन कर सकता है। पूरे रामेश्वरम में एक ही कलाम है और मैं चाहती पूरे हिंदुस्तान में एक दिन एक ही कलाम हो। आप आके वो जेवर अप्पा ने बेच दिए और मैं स्कूल गया। स्कूल में बहुत सारे बच्चे थे, उसी में एक पंडित का लड़का भी था। पंडित पुरोहित मेरा सबसे अच्छा दोस्त था। मगर मास्टर जी जानते थे कि उच्च जात नीच जात क्या होता है। मास्टर जी आए और कहा, अरे ये कलाम, तुम्हारी जगह यहाँ नहीं, पीछे जाकर बैठ, आखिरी कतार में बैठ। मैं उठा
और पीछे जाकर बैठ गया। ये बात पंडित जी को पता चली। पंडित जी स्कूल आए और मास्टर जी से कहा, मास्टर जी ये स्कूल है, विद्या मंदिर, या बेटा हर कोई टीचर रोल मॉडल है, तो तुम जाति के साथ भेदभाव कैसे कर सकते हो? धर्म तो बना है एक दूसरे को प्यार करने के लिए, और जो छोटे लोग होते हैं वो धर्म का इस्तेमाल करते हैं झगड़ा करने के लिए। तब मुझे लगा ये हिंदू मुस्लिम, तब मुझे लगा कि बाबा जो रामेश्वर की मंदिर में लोगों को नाव में बिठाकर ले जाते थे वो फजूल नहीं था। अल्लाह ने बाबा के कामों का उनको सिला दिया था। स्कॉट स्कूल में पढ़ने के बाद मैं MIT में जाना चाहता था। MIT यानी US वाली MIT नहीं, MIT यानी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। Yes, I wanted to go there. I went there. I did my first semester. MIT के कैंपस के बाहर एयरक्राफ्ट थे, नॉन यूज्ड एयरक्राफ्ट। मैं घंटों उस एयरक्राफ्ट को देखता, उनमें और पंछियों में क्या सिमिलैरिटीज़ है ये ढूंढने की कोशिश करता, बट somehow I was not getting it. MIT में पढ़ना इतना आसान नहीं था। I wanted to get a scholarship. I did my first project, but it got rejected. और प्रोफेसर मुझे बुलाकर बोले, कलाम, if you want to continue your scholarship, you have to give me an aircraft design in next 2 days. If you fail to do that, your scholarship will be cancelled and you will go out of MIT. I wanted to learn aerospace. I wanted to be in MIT. वो दो दिन मैं सोया नहीं, पूरा दिन, पूरी रात। I was spelling for creating my aircraft. आंखें लाल हो चुकी थी न सोने की वजह से, आंखों में बहुत प्रॉब्लम हुआ, but I was focused. Kalam, it is do or die. I completed my work and went to professor. Professor, I have completed my work. Please see through it. Professor said, Kalam, your design gets approved and your scholarship. You can continue be in MIT. After graduation from MIT, I wanted to go to 2 places definitely, desperately. I wanted to be in aerospace or in defense. Yes, the aerospace. The aerospace interviews were in Dehradun and the defense were in Delhi. I went to Delhi and appeared for my exam. When I went, I came 9th. No, this is not something which I should be happy about, because they did not select the 9th candidate. They selected the top 8 candidate. I just missed it by 1. I was totally distorted. Then I went to Dehradun and I selected in aerospace without any top. ऐसा लगा जैसे पंछी का जब बच्चा पैदा होता है और उसके पंख नन्हे सिमटे लगते हैं, वैसा ही कुछ लगा मुझे। पंख खुले नहीं थे पर थे। वहाँ मुझे मिले विक्रम सर, my mentor. We created our first aircraft, first missile, which will take care of India. Today is the day when missile was supposed to be launched, but it got failed. There was no hope. There was no Kalam. Then I thought I should go back to Rameshwaram. But Vikram sir said, no, falling is not just going down. Success comes back when you back stand up. I stood up. Yes. I thought, I am Kalam. I have to prove it. I can do it. Then we made Agni missile, which will take care of India against China and Pakistan. Today is the day when Agni is going to be tested. This will decide if there is Kalam or there is no Kalam. Let's see what's happened.
Then I became your president. I, Harun Pacheer Jain Babuddin Abdul Kalam, do swear in the name of God do swear in the name of God that I will faithfully execute the office of the President of India that I will faithfully execute the office of President of India and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and will, to the best of my ability, preserve, protect and defend the Constitution and the law, and that I will devote myself to the service of the and well-being of the people of India. and that I will devote myself to the service and well-being of the people of India. Then I came to your school to spoke anew and gave my thought, and I am certain you have taken what little I could give. Good morning, sir. Sir, I have a question. The best brains of the nation may be found from the last benches of the classroom. Could you please tell us what made you to believe in the last benches? Because I was the last bencher. Sometimes I was the last bencher, but most of the time first bencher. I thought the last bencher, everybody had got some knowledge. Every human had got some knowledge. A great teacher, a good teacher. His way of teaching, his way of interacting with student. He doesn't care where the students is sitting in first row or in the last row. For teacher, everybody is student. और उसके बाद वो दिन भी आया. I went to IIM Shillong. I was discussing with the prime graduates of IIM, and suddenly I started getting pain. I see myself collapsing. People came behind me. I rushed to hospital and declared that Kalam, the President of India, is no more. मैं एक कुआं हूँ, नॉलेज का, इल्म का, मोहब्बत का. जैसे अल्लाह ने अपनी कायनात को संभालने का हुक्म दिया, वैसे ही मैंने हिंदुस्तान के बच्चों को अपना बच्चा समझा. जब मैं मरा तो मैंने देखा कि लोगों ने कहा RIP, नॉट रेस्ट इन पीस, कलाम, RIP, रिटर्न इफ पॉसिबल, कलाम, रिटर्न इफ पॉसिबल. मेरे प्यारे बच्चों, कलाम तो एक नाम है, एक सोच है. कलाम तो सब में बसा है, तो फिर कलाम गया ही कहाँ है? कलाम तुम में है, तुम में है, तुम में है. कलाम तो तुम में है. कलाम, जी लो अपनी जिंदगी. लहरें जो उठाए, पानियों को हिलाए, ख्वाब है सच्चा वही. सारे लोग खड़े होकर हमारे बच्चों का हौसला अफजाई करें. आप बहुत जोर से बैठे हैं, कमर सीधी कर लें. जज़ाकल्लाहु खैरन. Jazakallahu khairan. MashaAllah, what a truly inspiring performance. Thank you for your talent and for being polite. And what you want? Very good, beta. Well done, well done, well done. There is mission of a developed India. बहुत अच्छा. हाँ सर. बहुत अच्छा.
तो वो है, खुदा 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 तो वो है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। जो दिन के पर्दों पे शब बिछा दे, जो रात को फिर सहर बना दे, गमे खिजा को बहार कर दे, शजर को फिर बासमर बना दे। वो शाखे हसरत गुलाब कर दे, महक से फिर लाजवाब कर दे। जो दिल के सहरा को सब्ज कर दे, जो रो पड़ूं तो गोहर बना दे। जो मेरी जान के करीब तर है, नजर में जिसकी मेरा गुमां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है, खुदा तो वो है। जबल के सीनों में जिंदगी को जो सब्ज पत्ती खिला रहा है, जो रेगिस्तानों की धूप में भी कई चिरिंदे जिला रहा है। हवा की नुसरत से ये परिंदे अताए पर से उड़ा रहा है। मदार गर्दिश की हद बनाकर निजाम कुदरत चला रहा है। उगा रहा है, खिला रहा है, कि दो जहां का वो मेज़बान है। ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है, तू ही खुदा है। ये जलते बुझते, ये झिलमिलाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। ये सरसराते, ये टिमटिमाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। उरूज वाले, जवाल वाले, ये नींद वाले, निढाल वाले, गहे फना में ये आते जाते, कसम खुदा की खुदा नहीं है। खुदा तो वो है अज़ल से जारी, बका है जिसको वो जाविदा है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां है। वही झुकेगा ये सर हमारा कि जिसके दम से ये सब जहां है। जमाल सारे उसी का जलवा, उसी के जलवों का कारवां। समीउन बसीरुन अलीमुन खबीर, करीमुन रहीमुन अज़ीमुन जलील। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं आसिया सुनसरा 12th आर्ट्स की स्टूडेंट। जिंदगी अल्लाह की अमानत है, संभाल कर रखना।
जिंदगी अल्लाह की अमानत है, संभाल कर रखना। ये खजाना है, इसे यूं ना लुटा कर रखना। आज के नौजवानों के मसाइल में सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिगरेट और ड्रग्स की तरफ बढ़ते उनके कदम। ये नशा न सिर्फ नशा करने वाले नौजवानों की जिंदगी ही नहीं, बल्कि उनके घर वालों और साथ ही साथ समाज की जड़ों को भी खोखला करती है। अब आपके आपके समक्ष प्रस्तुत है एक ऐसा सामाजिक संदेश जो जुड़ा है एक सामाजिक नाटक से। यह उन कॉलेज दोस्तों की कहानी है जो एक कष्ट से शुरू होती है और पूरी जिंदगी बदल देती है। इस नाटक को देखकर जो समाज को एक संदेश प्राप्त होगा, जो एक सीख मिलेगी, शायद इसका धुआं लोगों की जिंदगी में तूफान लाने से बचा दे। जगह जगह पर हो रहा नशे का बहिष्कार, जगह जगह पर हो रहा नशे का बहिष्कार, समझ सको तो समझ लो है देश की पुकार। लीजिए प्रस्तुत है आपके समक्ष एक सिगरेट का सफर जिंदगी से मौत तक। नाटक के पात्र हैं अहमद, बिलाल, रेहान, विनोद, थॉमस, मैक्स, बिलाल के बाबा, प्रिंसिपल सर, डॉक्टर राकेश। कॉलेज ग्राउंड है जहां पर थॉमस और मैक्स सिगरेट, वेब और ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हैं। हमें आ जाना नहीं चलते रख देना स्क्रीनशॉट में। आज चलो सिगरेट पीछे चलो। नहीं भाई, कल ही तो पिए थे, आज नहीं। आज चलो पीने चलते। खर्चे पानी को पैसा तो चाहिए ना। कैसा उधार का नतीजा दिख रहा है ना कि कुछ और चालू करना है। चलो आज पी के आते हैं। नहीं भाई, चलो पीने चलते हैं आज। कैसे हो? चालू नहीं हो रहा है सिगरेट। और बिला कैसे हो? सब ठीक? सब ठीक। तो सिगरेट ट्राई करोगे? और नवी सिगरेट आज। हाँ, कल नशा का ऐसी चीज़ है, लत लगाते जाते हैं। और थॉमस कैसे हो? और बिला सब ठीक? और मैक्स कैसे हो? एक अरे बिलाल, ये क्या तुम सिगरेट पी रहे हो? अरे यार बस एक सिगरेट ही तो है, सब पीते हैं, तुम भी ट्राई करो ना। ये सेहत के लिए ठीक नहीं होती, मैं नहीं पीऊंगा। अहमद जरा मर्द बनो, बच्चों जैसी बातें छोड़ो, जरा कश लगा कर तो देखो। एक कस ले लो, मजा आ जाएगा। एक नहीं, कस नहीं। लगा के तो देखो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। एक कश से कुछ नहीं होता। चलो लगा के देखो यार, लगा के देखो। लो तुम्हें दोस्ती का वास्ता हमारा, लगा के देखो। उफ, कितना बुरा लग रहा है। कैसे पीते हो तुम लोग ये सब? शुरुआत में सबको ऐसे ही लगता है, बाद में आदत पड़ जाती है। फेंकना था। सीन 2 है, कॉलेज बैकयार्ड है जहां पर दोस्त अपने वेब के साथ अलग अलग फ्लेवर लेकर बैठे हैं। आज ब्लूबेरी आइस लाया हूँ, जबरदस्त हिट देता है। अरे वो छोड़ो भाई, मेरा मैंगो बस देखो, जैसे असली आम का रस है, ट्राई करो। रियल में मैंगो बस है। तो पूछना चाहिए था मेरे से लेने से पहले, फालतू का पैसा वेस्ट हो गया ना। नहीं वो सब छोड़ो, कोल्ड मीट लाओ, दिमाग तक ठंडक पहुंचती है। कैसा लगा? अरे ये क्या बिलाल, तुमने आज फिर से कुछ नई चीज लाई, क्या है ये? इसे वेब कहते हैं, ये नया स्टाइल है, ये स्मोक नहीं फ्लेवर है। लेकिन धुआं तो अंदर जाता है, नुकसान तो करता होगा। अरे अहमद भाई, ज़माना बदल गया है, सिगरेट पुरानी चीज़ है, वेब सेफ है, फैशन है, आजकल में सब पीते हैं। नहीं, लेकिन मुझे नहीं पीना है। अबे जाहिल, ये मॉडर्न जमाने की मॉडर्न चीज है, ट्राई कर। ट्राई तो करके देखो। पी। चलो तुम इसको बोलते हो तो कर लेता हूँ।
सबको कितना स्टार्ट बुरा लग रहा है, कैसा पीते हो तुम लोग? ये स्टार्टिंग चल में रहा है। सबको ऐसे ही लगता है यार, बाद में सब ठीक हो जाएगा तुम्हारा। चलो चलो। मन ने तो मना किया था, मन ने तो मना किया था, पर भीड़ से आई आवाज़, हंसी का जोर तेज था, पीने का यही राज। सीन 3 है, क्लासरूम है, जहाँ पर अहमद थोड़ा बीमार अवस्था में बैठा हुआ है और उसके दोस्त रेहान और विनोद उससे मिलने आते हैं। दूसरी एक इधर आओ। अरे क्या हुआ अहमद, आजकल तुम बहुत खामोश रहते हो। कुछ नहीं, बस तबीयत ठीक सी नहीं है। तुम बिलाल के साथ ज़्यादा रहने लगे हो, सुना है वो गलत सोबत में है। हाँ, लेकिन मुझे लगा आजकल सब फैशन में यही करते हैं। अहमद, तुम सच बताओ, तुम्हारे अंदर अभी भी गिल्ट है ना? सच्चा दोस्त वो नहीं होता जो हमें बुराइयों की तरफ ले जाए, सच्चा दोस्त वो होता है जो हमें सच्चाई की तरफ ले जाए और हमें बेहतर बनाए। तुम समझ रहे हो ना अहमद? हाँ, लेकिन बिलाल का क्या, वो तो वेबिंग में बहुत आगे निकल गया है। अब वो कुछ ड्रग्स भी ट्राई कर रहा है, मालूम? ये बहुत खतरनाक रास्ता है, जिस्म और दिमाग दोनों को बर्बाद कर देता है। मैंने उसे समझाया, मगर वो कहता है सब करते हैं तो मुझे भी करना चाहिए। मुझे ये नहीं लगा था कि मैं कभी ये करूँगा। सब कहते हैं एक कष्ट से कुछ नहीं होता, और अब मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा है। नशे की लत बहुत बुरी, करो नशे का नाश, अपने ऊपर खुद तुम्हें रखना होगा विश्वास। अभी प्रिंसिपल सर क्लासरूम में आते हैं। स्टूडेंट, हमें पता चला है कि कुछ बच्चे कॉलेज में सिगरेट और वेप जैसी चीजें ला रहे हैं। ये सब चीजें सिर्फ यही है, जहर है, कातिल है, जो बेदर्दी से तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। याद रखो, नशे की आदतें धीरे धीरे तुम्हें जिंदगी से दूर कर देती है। होशियार रहो। आप तो हमारी ऑफिस में आके मिलो अभी। नशे का नाम बदला है, जिसे वेब कहते हैं। दिखने में बहुत स्मार्ट है, पर असर वही जहर है। आखिर धुआं तो धुआं है। सीन 4 है, बिलाल का घर, जहां बिलाल के बाबा रात के वक्त फिक्र से इंतज़ार कर रहे हैं। हाथ में बिलाल की बचपन की तस्वीर और आंखों से आंसू नहीं, उम्मीद बह रही है। जिस बेटे से सहारे की थी आस, जिस बेटे से सहारे की थी आस, उसकी अब टूट रही है सांस। यार मेरे बच्चे, तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुमने वादा किया था कि बड़े होकर मेरा सहारा दोगे, लेकिन आज जब तुम घर आते हो, सिगरेट और वेप की नशे में डूबे हुए आते हो, मैं हर रात डर में सोता हूँ। सोचो बेटा, मुझ पर क्या बीतती होगी। नशा रोज जो कर रहा, नशा रोज जो कर रहा, मिटता है घर द्वार, रिश्ते सभी छूट रहे, रोज मचे तकरार। बाबा, बिलाल मेरे बच्चे, उठो, तुम्हें ये क्या हुआ? ये सब चीज़ तुम्हें बर्बाद कर देगी। चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलूँ। सीन 5 है, नशा मुक्ति केंद्र, जहां बिलाल और अहमद गंभीर अवस्था में भर्ती किए गए हैं और वहां उनके दोस्त उनसे मिलने के लिए आते हैं। बिलाल, ये हमारे साथ क्या हुआ? अहमद, पहले सिर्फ सिगरेट थी, फिर वेब, फिर स्ट्रॉन्ग ड्रग्स की आदत, मैं गिरता चला गया। हमने तुम्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग हमारी सुने बिना ही नशे में डूबते चले गए। मुझे माफ़ कर दो। सिगरेट से शुरुआत की और ड्रग्स तक पहुंच गया। अहमद, वादा करो तुम ठीक होने के बाद दोबारा कभी वेप या नशे की चीज़ को हाथ नहीं लगाओगे। वादा करता हूँ बिलाल। ऐसा क्यों कह रहे हो बिलाल? तुम भी ठीक हो जाओगे। डॉक्टर साहिब, बिलाल और अहमद ठीक तो हो जाएंगे ना? सिर्फ अहमद ठीक होगा, वो भी अगर वो बदलने का पक्का इरादा करे तो। पर बिलाल के लिए देर हो गई है, उसे उसकी लंग्स और किडनी दोनों ख़राब हो गई है। वेप्स और ड्रग्स बहुत ख़तरनाक चीज़ है। पहले फ्लेवर अच्छा लगता है, फिर आदत, फिर जहर और फिर मौत। लेकिन अगर मरीज़ चाहे तो फिर वो वापस लौट सकता है।
अहमद, रेहान और विनोद, मुझे माफ़ कर दो यारो। मैंने अपनी ज़िंदगी भी बर्बाद की और अपने बाबा का भी दिल दुखाया। मैं अब वादा करता हूँ कि दोबारा कभी वेप या नशे की चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगा। डॉक्टर इसे देखे, इसे क्या हो गया? बिलाल बेटा आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ तुम्हें बेटा? बेटा आंखें खोलो। बिलाल अब नहीं रहा। बिलाल मेरे बच्चे, आंखें खोलो मेरे बच्चे, ये तुम्हें क्या हो गया? उठो बेटा। सीन 6 है, कॉलेज असेंबली है, जहां हार गई जिंदगी, जीत गया है नशा। असेंबली में प्रिंसिपल सर हैं, डॉक्टर हैं, बिलाल के बाबा हैं, अहमद हैं और उनके सभी दोस्त वहां पर बिलाल के लिए दुख प्रकट कर रहे हैं। इसको बीच में आए। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने एक तल्ख हकीकत बयान करना चाहता हूँ। सिगरेट, वेप और ड्रग्स ने मेरे दोस्त बिलाल की ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी। ये चीज़ें मज़े के लिए नहीं बल्कि मौत के लिए होती है। वेप फैशनेबल नहीं, सिगरेट कूल नहीं होता और ड्रग्स रिलैक्सिंग नहीं। ये सब ज़िंदगी का कत्ल कर देती है। स्टूडेंट, हमेशा याद रखो, जिंदगी एक ही होती है। इसे सिगरेट और ड्रग्स जैसी चीज़ों पर जाया मत करो। ये बिलाल के अब्बा है, अब इस दुनिया में अकेले रह गए हैं। नशे ने इनके बुढ़ापे का सहारा छीन लिया है। जो तुम्हारे माँ बाप दिन रात मेहनत करते हैं और तुम्हारी एक गलती के वजह से वो जिंदगी भर आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। डॉक्टर राकेश इन्हीं के नशा मुक्ति कहने ने अहमद को नई जिंदगी दी है। डॉक्टर राकेश जो सालों से अपने सेंटर में नशे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अमीर, गरीब, जात पात में फर्क करे बिना नशे के आदि नौजवानों का इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश, आप हमारे स्टूडेंट को गाइड कीजिए। बस एक ही बात, नशे की पहली सीढ़ी सिगरेट होती है, उस पर मत चढ़ो, फौरन मना कर दो। याद रखो और कसम खाओ कि स्कूल और कॉलेज ज्ञान के मंदिर हैं, इन्हें नशे के अड्डे मत बनाओ। अपने माँ बाप के सपने मत बर्बाद करो। बच्चों, आज मैं यहाँ इसलिए खड़ा हूँ कि आज मैंने अपने बेटे को खो दिया। ऐसे वक्त आपके माँ बाप ना देखे, इसलिए मैं चाहता हूँ सिगरेट, वेप, ड्रग्स ऐसी चीज़ों को पहले ही मना कर दीजिए। अंकल, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं बिलाल का सच्चा दोस्त साबित ना हो सका, वरना मैं उसे इस नशे के दलदल से निकाल देता। दोस्तों, सिगरेट, वेप और ड्रग्स का एक कष्ट जो तुम्हें बदमस्ती देता है, वही एक कष्ट तुम्हारी ज़िंदगी छीन लेता है। अहमद, तुम बहादुर हो। जो सबके सामने अपनी गलती कबूल करना आसान नहीं है और हमारा दीन भी कहता है नशा उम्मुल खबाइस है, सारी बुराइयों की माँ है। इसके लिए सब मिलकर एक साथ से नो टू सिगरेट, से नो टू वेप, से नो टू ड्रग्स, नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। धन्यवाद। यह नाटक एक सीख देने के लिए है। आज लगभग हर दोस्त की कहानी है जो मजाक मजाक में, हंसी हंसी में जहर पकड़ लेता है और वो जहर उसे जकड़ लेता है। एक कश जिंदगी को मौत के मुंह में ढकेल देता है। आइए इस जंग से, इस लड़ाई से हम लड़ें और इससे लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अपने परिवार में प्रेम और सौहार्द रखना पड़ेगा, तभी हम इससे मुक्ति पा सकते हैं। प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। प्यार के रंग का धागा चुन लो, फिर रिश्तों का स्वेटर बुन लो। सुख दुख का है ताना बाना, कहीं जोड़ है कहीं घटाना। चलो बुनाई शुरू करें हम अब दिल के एहसास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक सलाई आदर की ले, एक ले विश्वास की। एक ले विश्वास की। धन्यवाद। वेल डन बॉयज, ड्रामे का ये मैसेज हम सब के लिए है। शुक्रिया। गुलों में रंग भरे बादलों बहा चले,
गुलों में रंग भरे का दिनों बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले. It is a privilege to acknowledge our respected guest of honor, Mr. Nisar Khan, Deputy Education Officer of BMC. Now I would like to invite Mr. Mahfouz Siddiqui sir to please come on stage. करते हैं और तालीम के लिए भी काम करते हैं. तो इस खुश मौके से मैं मोहतरम से दरख्वास्त करूंगा कि आप तशरीफ़ ले आएँ स्टेज पे और उसके बाद इंशाअल्लाह चंद अल्फाज हमें इनायत फरमाएं और उसके बाद इंशाअल्लाह हम आपको रुख्सत तो नहीं करना चाहते, लेकिन बहरहाल वो कहते हैं ना कि न चाहते हुए भी रुख्सत करना पड़ेगा. जज़ाकल्लाह. अस्सलाम वालेकुम. आज का जो एनुअल फंक्शन, बल्कि 33वां एनुअल फंक्शन स्कॉलर स्कूल का जो यहाँ मुनक़िद किया गया है, महफूज साहब और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि प्रोग्राम बहुत अच्छे लेवल पे उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है. बच्चों के परफॉर्मेंस देखे, 2-3 प्रोग्राम देखने का मौका मिला. जिन्होंने इनको तैयार किया है काफ़ी मेहनत की ऐसा महसूस होता है. मैं उन टीचर्स को मुबारकबाद देता हूँ जिन्होंने प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, बच्चों को तैयार किया है, जो पर्दे के पीछे होते हैं. और यहाँ स्टेज पर आकर कुछ प्रोग्राम पेश करना इतना आसान नहीं होता है. इसके पहले मेहनत होती है, तैयारी होती है. बहुत अच्छा टाइमिंग, ड्रेसिंग, ड्रामा जो नशा के बारे में, अवेयरनेस के बारे में पेश किया गया वो भी बहुत अच्छा था. पेरेंट्स भी यहाँ मौजूद है, टीचर्स भी है. इस्लामिक स्कूल्स, इंग्लिश मीडियम का जो कॉन्सेप्ट है कि अच्छे माहौल में अंग्रेज़ी की तालीम बच्चे को मिले, इस सिलसिले में बहुत सारे स्कूल्स ने पहल की और अच्छी तालीम दे रहे हैं. 2-3 हफ्ते पहले बिलाल स्कूल में मेरा जाना हुआ, ऐसा ही एक फंक्शन था. काफ़ी उन्होंने मेहनत की थी, अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था. ऐसे बहुत सारे स्कूल्स मुंबई में, पूरे मुल्क में हो गया है. ये वक्त की ज़रूरत है. लोग चाहते हैं कि बच्चे को इंग्लिश मीडियम में तालीम मिले, मगर माहौल अच्छा मिले. ऐसा माहौल ना हो जिससे बच्चा जो है वो गफलत में चले जाए, गफलत के माहौल में चला जाए. माँ बाप चाहते हैं. 2-3 बातें मुझे कहनी है. पेरेंट्स भी मौजूद है, बच्चे भी सुन रहे हैं नीचे ऊपर जहाँ भी बैठे हैं. एक तो ये है कि जो अंग्रेज़ी की तालीम के साथ साथ दीनी माहौल जो बच्चे को स्कूल में मिलता है, अब आगे की जिम्मेदारी पेरेंट्स की होती है कि बच्चा जब घर पर आए तो वो माहौल, बल्कि उससे अच्छा माहौल उसको दे. स्कूल में बताएगा कि बच्चा नमाज का एहतमाम करे, बच्चियों को पर्दे की तालीम दी गई, अच्छी बातें बताई गई. अगर पेरेंट्स ने उनका सपोर्ट किया वो माहौल बाकी रहता है. स्कूल में बच्चा 6 घंटे होता है, 5 घंटे 6 घंटे, मगर बाकी बड़ा अरसा जो है वो घर में गुजारता है. हमारी जिम्मेदारी पेरेंट्स की कि बच्चों को वो माहौल, बल्कि उससे अच्छा माहौल देने की कोशिश करें. ज़िंदगी में हमारे आने का जो मकसद है वो अल्लाह की इबादत और अल्लाह के दीन की दावत, ये 2 मकसद हैं. इसके साथ दुनिया में हमको अल्लाह ने भेजा है. अपनी ज़ात से अल्लाह के दीन पे चलना, अल्लाह के हुक्म पे चलना और इस पैगाम को लेके सारे आलम में जाना, हर इंसान तक इस पैगाम को पहुँचाना ही हमारी जिम्मेदारी है. बच्चे को ये इस्लामिक कंसेप्ट स्कूल में दिया गया, मगर घर आने के बाद हमने उसकी नमाज की फ़िक्र नहीं की. होमवर्क की तो फिक्र कर रहे हैं, मगर उसकी नमाज की, उसकी दीनी फिक्र अगर हमने नहीं की तो बच्चा कुछ दिनों के बाद उस माहौल से, उसके अंदर से वो असर ख़त्म हो जाता है. तो ये एक जिम्मेदारी है. दूसरी बात यह है कि जितने पेरेंट्स हैं और बच्चों से मैं कहूँगा कि आजकल ज़माना कंपटीशन का है. आपको अच्छी मेहनत करनी होगी, रेगुलर मेहनत चाहिए, पढ़ाई में अच्छी मेहनत चाहिए. सरसरी मेहनत से नहीं होता है. आज बच्चे को अगर MBBS करना है, उसको नीट का एग्ज़ाम देना है, 720 मार्क्स का पेपर है. अगर उसने अच्छी मेहनत नहीं की, अच्छी मेहनत से मुराद खूब मेहनत करनी होगी, तब वो बच्चा अच्छे मार्क्स लाएगा और तब उसका एडमिशन होगा. इंजीनियरिंग में जाना है, JEE का एग्ज़ाम देना है,
या सिविल सर्विसेज में जाना है, MPSC एग्जाम देना है, BMC में जाना है, गवर्नमेंट के जितने शोबे हैं उसमें जाने के लिए हमें मेहनत करनी होगी। हम रोना रोते हैं हमें चांसेस नहीं मिल रहे हैं और बच्चे आगे नहीं जा रहे हैं। अरे मेहनत करो भाई, मेहनत करोगे तो आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है। हमारे जहन में कॉन्सेप्ट ही नहीं है आगे बढ़ने का। बहुत सारे पेरेंट्स के दिमाग में यह है कि बच्चा 10वीं 12वीं पढ़ लेगा तो ये दुकान पे बैठ जाएगा। कोई बच्चे रिक्शे चलाने लग गए, नौजवानी में रिक्शा चला रहे हैं, मुर्गी की दुकान खोल लिए, गोश्त की दुकान। ये हमारे जहन में बड़े अज़ाइम होने चाहिए। बच्चों को अच्छी तालीम और अच्छी मेहनत करा के आगे बढ़ने का, कंपटीशन में उतरने का हौसला देना है पेरेंट्स को। और बच्चों में सलाहियत बहुत है। हम क्यों नहीं सोचते कि हमारा बच्चा सिविल सर्विसेज की तैयारी अभी से करे। अभी 10वीं में तो क्या हुआ, मगर आगे का उसको अभी से प्लान करना है। बहुत सारे लोग समझते हैं भाई अगर वकील बनना है तो झूठ बोलना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। सच बोल के वकालत की जा सकती है। जजेस, अगर आपने बच्चे ने LLB कर लिया, 5 साल उसने प्रैक्टिस की है, अब वो जुडिशरी का एग्जाम दे, इम्तिहान पास करके जज की कुर्सी पे जाकर बैठ जाए। कितने जजेस को मैं जानता हूं जो दीनी माहौल में होते हुए आज जज बन गए, गवर्नमेंट के ऑफिसेस के अंदर बड़े ओहदों पे काम कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को ऐसा माहौल और ऐसी सोच क्यों नहीं देते? तो मैं तमाम पेरेंट्स से दरख्वास्त करता हूं कि अच्छी तालीम दो। बच्चियों को भी पढ़ाना चाहिए। हम समझते हैं कि लेडी डॉक्टर के पास जाना है। हमारे घर में कोई खातून को अगर तकलीफ हो जाए तो हम देखते हैं लेडी डॉक्टर के पास जाना। लेडी डॉक्टर कैसे बनेगी? हमारी बच्ची डॉक्टर बनेगी, दीनी माहौल के साथ बनेगी। एक बच्ची को मैं जानता हूं, केई में अभी इसका एडमिशन हुआ है MBBS में। वो बच्ची आज भी नकाब ओढ़ करके जाती है। उसकी क्लास में उससे पूछा गया कि बेटा तुम नकाब कहा कि मैं ऐसे ही रहूंगी। बोले ठीक है। इस साल उसका फर्स्ट ईयर है। तो दीनी तालीम के साथ, दीनी माहौल के साथ आप आला तालीम हासिल करके कंपटीशन में उतर के गवर्नमेंट के आला ओहदों पर जा सकते हैं। इस साल कितने बच्चों ने IAS क्रैक किया, हिजाब में बच्चे ने IAS क्रैक किया है। तो हम ऐसा क्यों नहीं सोचते हैं? इसलिए तालीम में मेहनत दरकार है, ऊंचे अज़म दरकार है। ठीक है, किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस में जाने से इनकार नहीं है, बिजनेस में भी जाए, मगर पढ़ लिख करके जाए। अच्छी तालीम हासिल करना बहुत जरूरी है। दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, आला तालीम हासिल करना जरूरी है। ये इस वक्त की अहम जरूरत है। आज का जो प्रोग्राम जो है वो मुनक़िद किया गया, एनुअल डे इसलिए रखा जाता है ताकि लोगों में इंस्पिरेशन आवे, बच्चों के अंदर, पेरेंट्स में इंस्पिरेशन आवे। तो ये जो मुंतज़िमीन है, मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। महफूज साहब, स्कूल बहुत अच्छे अंदाज में आप चला रहे हैं। अल्लाह इस स्कूल को, इस अदारे को और तरक्की अता फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है इतनी मसरूफियत के बावजूद। और इंशाअल्लाह सर ने मुझे इस बात का भी यकीन दिलाया है कि मुझसे जो भी डिपार्टमेंट के ताल्लुक से ताउन दरकार होगा, मैं इंशाअल्लाह आपको हमेशा उसके लिए तैयार रहूँगा। मैं आपके बहुत ही ममनून और मशकूर हूँ कि अपने बिजी शेड्यूल से भी आपने वक्त निकाला और हमको जो है ना, हमारे इस फंक्शन को आपने एक तरह से इज्जत बख्शी। जज़ाकल्लाह खैर सर। Now you people can start your programs. Today, we remember a day that changed history forever. A day when numbers were few, but Iman was strong. The Battle of Badr teaches us that victory does not come from strength alone, but from faith, discipline, and trust in Allah. Through this action song, our students are going to present Qissa-e Badr, a story of courage and divine help. Let us welcome the performers with heartfuls of respect. मैं तुमको इख्तिसारन बद्र का किस्सा सुनाता हूँ। मिला कैसे मुसलमान को हंसी गलबा सुनाता हूँ। मैं तुमको इख्तिसारन बद्र का किस्सा सुनाता हूँ। मिला कैसे मुसलमान को हंसी गलबा सुनाता हूँ। मुबारक 17वीं तारीख रमज़ान यौम जुम्मा था।
खुदा के दी के गलबे से अदू पर तार सदमा था। अदूए दीन मक्का में सताते थे, मोहम्मद को मिटाना चाहते थे, रात दिन वो दीन अहमद को। सभी कोशिश हुई नाकाम तो हैरान हुए दुश्मन, बराए कत्ल पैगंबर सरे मैदान हुए दुश्मन। सहाबा पर अदुओं ने मुसलसल जुल्म जब ढाए, रसूले दो जहां पर भी सितम के तीर बरसाए। खुदा से हुक्म हिजरत जब हमारे मुस्तफा पाए, मदीना करके हिजरत मुस्तफा तशरीफ ले आए। अदुए दीन ने इस्लाम को बढ़ते हुए देखा, खुदा के दीन के सूरज को जब चढ़ते हुए देखा। मकामे बद्र आ पहुँचे चरागे दी बुझाने को, खुदा के दीन पर चलते थे जो उनको मिटाने को। हक़ो बातिल की पहली जंग ज़मीने बद्र ने देखी, के नूरो तीरगी की जंग ज़मीने बद्र ने देखी। इधर थी हक परस्तों की जमात फौज रहमानी, उधर थी बुत परस्तों की जमात फौज शैतानी। इधर थे रब के दीवाने नबी के चाहने वाले, उधर थे लात उज़्ज़ा और हुबुल जैसों के मत वाले। इधर कुल 300 तेरा थे जो तादाद में कम थे, मगर थे सख्त दुश्मन पर अगरचे नर्म बाहम थे। उधर लेकिन 1000 अफराद पर थे मुश्तमिल दुश्मन, बड़े खुनखार जज्बाती बड़े थे मुश्ताइल दुश्मन। इधर थे बेसरो सामा मगर दिल में यकीने रब, उधर हथियार से थे लेस ये दुश्मन सभी के सब। इधर फाका कशी में रात दिन थे काटने वाले, उधर थे खात पीते फर बतन और पाटने वाले। इधर महवे दुआ सजदे में थे महबूब सुबहानी, उधर थे चोर ताकत के नशे में दुश्मने जानी। बिलाखिर जंग जारी हो गई हक और बातिल की, मुसलमान और काफिर यानी मुनकिर और काइल की। कभी देखा न होगा आसमाने ऐसा नज़ारा, कलीलों ने कसीरों को ज़मीं पर दे पटक मारा। ये हालत देख कर बू जहल ने तकरीर फरमाई, दिले कुफ्फार में हिम्मत बढ़ाई जोश गरमाई। मगर खुद बू जहल मारा गया बच्चों के हाथों से, शिकस्त फाश झूठों को मिली सच्चों के हाथों से। न टिक पाए कोई सरदार इन मिस्कीन के आगे, अदू थरने लगे सब गाज़ियाने दीन के आगे। ज़मीने बद्र पर उतरे फरिश्तों के कई लश्कर, जुदा होने लगे दुश्मन के धड़ से दुश्मनों के सर। एकाएक दुश्मनों के सफ में मातम खौफ के छाए, न भाले तीर खंजर ढाल ना शमशीर काम आए। कटे जो कट गए जो बच गए मैदान से भागे, हुए कुछ कैद और कुछ हमले ईमान से भागे। हुआ ये जंग आखिर फैसला कुन दीन के हक में, ये बाजी आ गई यूं लश्करे मिस्कीन के हक में। पड़ा यूं जज्बे काफिर पे भारी दीन का जज्बा, कलीलों को कसीरों पर खुदा ने दे दिया गलबा। इसी गलबे की जाफर तुम भी रब से अब दुआ मांगो,
तुमको इख्तिसारन बद्र का किस्सा सुनाता हूँ, मिला कैसे मुसलमान को हंसी गलबा सुनाता हूँ। Well done, boys. Very nice quotation, I should say. Round of applause for them. MashaAllah. That was a powerful and inspiring performance. Qissa Badr reminds us, when faith leads, victory follows. May we learn courage, patience and unity from this great lesson. Ameen. MashaAllah to all our performers.